Hello everyone, good evening to you. I hope you guys are doing good. So this is me Priyanka Swargari and yes, welcome to another video of mine. Today I'm going to share something about myself which is a little bit of a sensitive topic, the darkest phase of my life. Prior to that, I would like to introduce myself a little bit more. So, I belong to Northeast Assam and I come from a small city named as Dibrugarh. I belong to a middle class family. My father used to work in railways as a government worker, plus my mom is a housewife. She used to be in politics few years back and then she left it. And I have a brother as well. A four-member family. I grew up in a very strict environment. My mom was very strict, and my brother as well. So I have that fear in my mind from the time I started, meeting people, and that I should not talk to strangers more. And yes, I always had that fear to talk with the boys. My mom used to be very competitive. She used to be, very competitive that we should be the best among everyone. ये जो आज मैं बात करूँगी, it might be little bit helpful for our present parents कि वो समझे अपने बच्चों को कैसे चीज़ें होता है और friendly रहे. What has happened to me when I used to study in my school, I used to be very tomboyish. और मतलब मैं लड़कों की तरह रहती थी. मेरे बाल इतने छोटे छोटे रहते थे, मतलब इतना बढ़ने से डायरेक्टली कटा जाता था. मतलब आई यूज टू चॉप इट डाउन एंड ब्रिंग इट बैक टू इट्स नॉर्मल शेप. So I didn't had that thing, to talk with anyone or being little bit, more girlish. But I used to be a super shy girl. Like if I pass through टू और थ्री बॉयज़, अगर कोई दो तीन लड़के भी ऐसे रहते हैं तो अगर मैं उससे पार करके जाती हूँ, मेरा गाल पूरा लाल हो जाता था. एंड आई यूज़ टू फील सो शाय. मैं ऐसे सर नीचे करके ऐसे जाती थी धीरे धीरे करके. सो राइट नाउ द पर्सन आई एम, मतलब जो लड़की मैं अभी हूँ वो अलग ही है. वो अगर कंपेयर किया जाए वो लड़कियाँ नाउ, इट्स लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क. लाइक इट्स वेरी डिफरेंट. सो आफ्टर आई पास माई क्लास 10, दैट मीन्स माई मेट्रिकुलेशन, तो क्या हुआ कि आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई हेयर. आई यूज टू फील लिटिल बिट गर्लिश. एंड yes, at that time I drew attention as well. मतलब मैं लोगों से बात करने लग गई. एंड I also used to have a cell phone, तो मैं वहाँ पर भी मैसेज करती थी. तो माई मॉम यूज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. मुझे when I passed my class 10, and after lots of struggle and fighting with her, I got my phone. Before that though, I don't have any phone. I used to communicate with my friends through my father's phone or my mom's phone. I would not reveal the name of those people. I actually started talking with a boy. I would say मजाक मजाक में ही, by mistake I sent him a picture, wearing a two-piece. So what happened, that picture got circulated. तो आई वॉज शॉक्ड. मेरे ऊपर बॉम्ब फट गया. मतलब when I heard from someone that people started taunting me, मुझे मतलब मजाक उड़ा रहे मेरे और बोल रहे ये वो. I still remember that phase where I got shattered. मतलब I went to a depression phase. My parents didn't knew until that. तो ऐसे ना धीरे धीरे करके time गया. But what happened, it actually hampered on my studies. Everyone started talking about it, my friends and all the other people. Then my mom came to know about it, and what she did was she grounded me. She grounded me to that level where I cannot even walk outside of my room and even step out into my veranda. आई स्टार्टेड हैविंग द फियर टू गो आउट, कि मतलब मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे लोग बोलेंगे, चिढ़ाएंगे और ख़राब ख़राब बोलेंगे. आफ्टर गेटिंग ग्राउंडेड फॉर ए मंथ, मैं धीरे धीरे ठीक होने लग गई. बट पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी बैड नेम्स और ख़राब ख़राब बोलने लग गए. इट वॉज हुज फॉल्ट कि मैंने किसी को ट्रस्ट किया और एंड दैट पर्सन एक्चुअली स्प्रेडेड एंड सर्कुलेटेड द फोटो.
एंड ऑल्सो इट वॉज़ माई मिस्टेक, बट वो गलतियाँ तब, आप सोचो उस टाइम की बात है, इट वॉज अराउंड 2014 एंड 15. एट दैट टाइम पीपल हैज़ वेरी नैरो मेंटेलिटी, दे don't know about social media, they don't know anything about bikinis and everything. I used to have suicidal thoughts, I used to cry alone in the night, and I used to have lot of bad thoughts in my mind to self harm myself. A very bad phase in my life. I still get goosebumps if I, remember all those things. I am speaking about this topic after very long time. Like I have totally forgotten about all those things. वो बचपन में हुआ था मेरा, तो ये तो गया, ठीक है. This was the first phase that happened to me, and slowly by slowly things started getting normal, and I came back to my studies. I was more than an average student. I was near to a bright student. I used to get ranks. I used to get good percentage in my studies. But after that incident happened, I was so shattered that my studies also, it started getting degraded. But जैसे तैसे करके I coped up with my studies, and then I came out with very good percentage from class 12. And then after that, something very bad happened to me. The things which I'm going to tell you, just remember that if you relate to yourself, this will be a very good lesson for your life, and this will be a changing advices for you. So when I started my first year of graduation, that means my degree, so what happened that some after an year, after the first year, by the second year I got to know that a video is out or something like that. So I just searched for it. I investigated about it. What it is about. Then I got to know there was a person whom I met in my college time, and that person used to like me, but since I did not approve of his relationship, what he did was, I don't know what it was a video, so he actually made that, and I don't know, he told me that it got leaked by chance, but what was his reason to make it? And once it got circulated, that was the end of my life. उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती. I told this thing to my parents, but being from a middle class family, they always have that fear. They always thought कि उनका reputation ख़राब होगा, और कैसे हम लोग ये केस वगैरह कोर्ट वाली चीज़ें मतलब आना जाना करेंगे. जो पहला फेज़ हो गया था वो तो हो गया है. उसके बाद सेम चीज़ मेरे साथ हुआ. Like I went to my parents and I asked them to help me, come and help me once, but they thought that इनका रेपुटेशन ख़राब होगा तो सोसाइटी में क्या नाम होगा, सोसाइटी क्या बोलेंगे. But already things were getting worse. I stopped eating. I was not sleeping for continuous 2 to 3 days. I started having low pressure and BP. I am thankful to two persons in that phase of my life. I was in a relationship with a person at that time, and that person helped me a lot. He just told me, whatever happened, just go file a case against that person, against that boy. मैं रात को इतनी देर तक स्टेशन में बैठी रहती थी कि मतलब कि मेरा बात कोई सुन ले. I went there to file a case, and no one came and noticed me. So I went and approached the officer in charge from the station, and I explained him. I told him what has happened. So I would really like to stand for myself. That was the time when I thought कि मुझे अपना stand लेना है. So I told him everything, and he actually, I'm still having goosebumps right now. That person understood me. Finally, I filed a case, and I registered an FIR for that person. उसके बाद पुलिस वाले उस लड़के के घर पे गए. उसके पेरेंट्स आए हुए थे मेरे घर पे उस चीज़ के बाद ही कि मतलब हमारे घर पे पुलिस आए हैं, और उनको बोला गया आपके लड़के ने ऐसा ऐसा किया. तो their parents came to my home and they told me to compensate it with money. I don't want money. मुझे पैसा नहीं चाहिए थी. मैं क्या करती पैसा लेके चली जाती. मैं इस जगह पर नहीं रहती, लेकिन मैं कभी तो वापस आऊँगी उस जगह पर. ठीक है, मुझे तुम्हारे पैसा नहीं चाहिए.
आई जस्ट वांट माई सेल्फ रेस्पेक्ट टू कम बैक। मुझे मेरा रेपुटेशन, मेरा इमेज मुझे क्लियर करना है। आई थिंक अनटिल नाउ लॉट ऑफ पीपल डजंट नो नियर बाय कि मैंने ये सब चीज़ें किया। आई थिंक कुछ कुछ लोगों को पता है। आई स्टिल हैव दैट आर्टिकल। जिस टाइम वो लड़का पकड़ा गया, ही दैट पर्सन गॉट अरेस्टेड। वो दुर्गा पूजा का टाइम था जिस टाइम दैट बॉय गॉट अरेस्टेड, एंड दैट पर्सन वाज नॉट एट ऑल ashamed of what he did to me. I took a lawyer and I took guidance from her, and yes, I am thankful to that person as well. उन्होंने मुझे अपनी फैमिली की तरह सोच के शी हेल्प मी दैट यस आई विल हेल्प यू इन दिस। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, एंड आफ्टर डैट देर वर लॉट ऑफ आना जाना कोर्ट पे, ये करना, विटनेस देना। सो आप सोचो, मैंने पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया था उस टाइम। मैंने ये बोला कि आइदर मैं ये करके ख़त्म करूँगी या फिर आई वोंट लिव। मैं कैसा फील कर रही थी, मैं मेरा दम घुट रहा था, और एवरी डे आई यूज़ टू वेक अप हैविंग वियर्ड ड्रीम्स। मैं चिल्ला चिल्ला के रोती थी, लाइक इट वॉज टू बैड। आई डिड ऑल द फॉर्मेलिटी, सब चीज़ें हुआ, एंड देन दैट पर्सन वेंट टू द जेल। आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग ही वॉज इन जेल, और अभी क्या हो कुछ नहीं पता है मुझे अभी। दैट पर्सन गॉट अरेस्टेड अंडर पोस्को, दैट मीन्स व्हेन आई वाज अंडर 18 दिस थिंग हैज़ हैपेंड। और जब ये चीज़ हुआ तब मैं 1 साल बड़ी हो गई थी। आई वॉज लाइक अराउंड 19। वन थिंग आई नो दैट अगर मैं वो स्टैंड नहीं लेती उस टाइम, तो आज मैं यहाँ बैठी नहीं रहती। इफ़ यू वुड टेल मी कि ये लड़की इतनी रूड है, इतना बोल्ड है, किसी से डरते नहीं है, तो ये लड़की क्यों बनी, ये भी पता चलना चाहिए। बिफोर जजिंग एनी वन, बिफोर पॉइंटिंग आउट टू एनी वन, एवरी person should understand what that person is going through. Even though you don't understand, stop telling negative things and ख़राब बोलना छोड़ दो। मतलब लोगों को बस टॉपिक चाहिए बात करने के लिए कि इसके साथ ये हुआ वैसे हुआ। उसके बाद जब चीज़ें फिर ठीक होने लग गया था, और आप सोचो, मैं रात रात को निकल के जाती थी स्टेशन, पुलिस स्टेशन, जब भी वो लोग बुलाते थे मुझे। अपने ये दौरान ही मतलब मैं इतनी टफ़ हुई हूँ ना, फीलिंग्स, इमोशंस कुछ नहीं रहा था। मतलब मुझे ऐसा था कि मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ अभी। आई स्टॉप टॉकिंग विद माई नेबर्स, आई स्टॉप टॉकिंग विद माई रिलेटिव। मेरा रिलेटिव्स के साथ कोई नाता ही नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरा एक ही कज़िन सिस्टर है जिसके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड है। शी स्टेज इन दिल्ली ओनली। आई स्टॉप्ड गोइंग टू कॉलेज, बट मुझे ये था कि मैं अपने लिए करूँगी, एंड विद दैट विल पावर आई passed out from my degree. I passed out from my graduation college with flying colors in first class. My career started from a very early age. I would say I would even blame my parents कि उन्होंने मुझे उस टाइम साथ नहीं दिया। अगर वो साथ दिया होता तो मैं इतनी मेंटल स्ट्रेस से नहीं मतलब मैं इतने मेंटल स्ट्रेस से नहीं जाती। एंड मेरा एडवाइस यही है, जो भी लड़कियां इस स्टेज से गुजरते हैं, ऐसा कुछ होता है उनकी लाइफ में, प्लीज़ टेक ए स्टैंड फॉर योर सेल्फ। डरो मत। ये 21st सेंचुरी है। आप सोचो, मैं उस टाइम ही मैंने अपने लिए अपने लिए स्टैंड लिया, और आई टुक दैट थिंग वेरी सीरियसली, और मैंने आई पुट दैट बास्टर्ड इन दैट जेल। और मुझे उसके बाद से ना डर लगता है, ना मुझे किसी के ओपिनियन से मुझे दिक्कत होता है। आई डोंट केयर अबाउट एनी वन अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू मी। ठीक है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रेन। दोस्त बनो उनके, दुश्मन नहीं। उनको ये मत दिखाओ कि तूने जो गलती की उसके लिए हम भरपाई नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि जन्म दे के उन लोग को आपको देखना है, बट आप उनको नहीं देखोगी, और आप अगर उनको नहीं समझोगी, तो दैट विल बी अ वेरी बैड थिंग फॉर दैट चाइल्ड। मतलब सोचो, मैंने तो अपने विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग करके मैंने चीज़ें किया, बट हो सकता है कोई लड़की वो नहीं कर पाएगा। मैं लड़कों को बोलना चाहूँगी कि तुम लोग अपने घर पे अपनी बहन को भी देखते हो, अपनी माँ को भी देखते हो, तो अगर तुम्हारी बहन और माँ के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते?
सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स। मैं जितना आगे आई हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उसके बाद। आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई वर्कड ऑन माई हेल्थ, एवरीथिंग आई वर्कड ऑन। और अभी मुझे मैसेज करते हैं लोग, वही लोग जो मुझे उस टाइम इतना ख़राब बोल रहे थे, इतना दैट वॉज नॉट माई मिस्टेक। एवरी टाइम ए गर्ल इज़ ब्लेम्ड ऑन ऑन प्रायोरिटी। वो लड़की को ही दोष देते कि ये लड़की ख़राब है। अरे आप सोचो तो सही, उस लड़की के ऊपर क्या बीत रहे है। तो व्हेन आई सी पीपल नाउ टेक्सिंग मी, अभी मुझे मैसेज करते हैं कि कैसे हो आप, ये वो, आई आई फील लाइक क्या बोलूँ उन लोगों को, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं उनको ना रिप्लाई करती हूँ। एंड राइट नाउ आई वुड से कि मैं बहुत अच्छी स्टेज में हूँ। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम डूइंग प्रोग्रेस, मैं अपनी चीज़ें कर रही हूँ। उन लोगों से मैं बहुत ऊपर हूँ, वो लोग मेरे आसपास भी नहीं है अभी। बहुत एंशियस हो रही हूँ। आई विल जस्ट गो फॉर ए वॉक आफ्टर दिस। और ये जो चीज़ है ना, मैं बोलने के लिए बहुत टाइम से सोच रही थी कि यूट्यूब इज़ सच ए प्लेटफॉर्म वेयर आई स्पीक माई हार्ट आउट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन जज करेंगे, क्या कमेंट करेंगे। बट मैं अपनी कहानी बोलना चाहती थी, अपना जो फेज़ है जिसके वजह से मैंने इतने चीज़ें देखा है ना, इतने छोटे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि अभी जैसा मेरा लाइफ दिखता है, इतना अच्छा, इतना मैं मतलब ऐसे ड्रेस्ड अप रहती हूँ, मेरा इतना, मैं कहाँ इधर उधर घूमती हूँ, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। आई मेड दिस लाइफ स्टाइल, मैंने बहुत मेहनत से ये लाइफ स्टाइल बनाया है और अपनी मेहनत से यहाँ पर आई हूँ मैं। दिस वॉज अ वेरी exhausting and emotional video of mine. That's it for today. Thank you so much, and please take care of yourself. Keep loving me. Bye bye.